Hello dear aspirants. So I hope all you are good. So today I have decided to take a lecture for partial differential equations. As many of you partial differential equations, okay. So many of you are comfortable with this topic, but why you suffer in this topic? Why you are not able to utilize the time in the exam hall, in the actual exam? The reason behind is very simple, that here in this topic especially we have like methods to solve questions, right? And what the mistake we do as an UPSC aspirant, we think that by just solving one example of each method, I will be able to deliver the thing in the exam hall. And that does not occur actually. Why? Because why it does not occur? Because if you talk about, let's say for example, Charpit's method, there are several categories. What method to chalo, okay, method is, let's say first method you are doing, and there are some 7 to 8 examples, okay, and the source is obviously for us is MD Rai Singhania, ठीक है. MDR we will be following for examples, and they ask examples directly from that book. So what we usually do in 7 to 8 examples में we just do at least 1 or 2 and thought that okay, I'll be able to do. No, not at all. It does not happen. So the first and foremost suggestion is solve. I am saying solve, not सीइंग. बहुत सारे लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा यार ये तो हम कर लेंगे, लेकिन मैथ्स में मेरी बात को इसको ख्याल रखना कि ये होता नहीं है. देखने से क्वेश्चंस नहीं होंगे. आपको ये बात छोटी लगेगी, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, देखने से क्वेश्चंस नहीं होंगे. अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है नहीं मारना है ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है. मेरा सजेशन ये है कि until unless you do not solve each example, you will not be able to get the minute thing which need to be remembered here in this PDE chapter. So that is why like as I decided earlier कि यार PDE तो कर लेंगे बच्चे, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. But as an aspirant when I think about it, I really think कि it is needed to be done. Fine. So इस कीवर्ड के साथ मैं इस टॉपिक पे मूव करूंगा. बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग इस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है. हाँ, जहां आपको मेरे सजेशंस की ज़रूरत है, being a mentor, I will say those suggestions for you. Okay? चलो. So what will be our plan for this chapter? The lecture plan. In this chapter we will be dealing, first तो चलो introductory अपना होगा, ठीक है. इसके बाद में linear differential equations, इसके बाद non linear obviously partial differential equations, ठीक है. Here majorly we have two methods actually, ठीक है. Number one is introduction में अपन सीख लेंगे formation of PDEs. Formation of PDEs में why I am writing like this, because it will help you in recalling the things from PDE.
Okay, otherwise we may think yaar it is a very big chapter, it is very like impossible to recall the things, right? So for that I am here for you. चलो, फॉर्मेशन ऑफ पीडी, तो इसमें अपने पास रहेगा बाय रिमूविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. Okay, and here we'll be having a good result कि number of arbitrary constants से how the order of PDE is defined. Order and degree and all this already we have discussed during the ODE lecture 1, right? चलिए, so यहाँ पर एक मेजर सेगमेंट रहेगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, मतलब रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ पीडी. ओके, चलिए, here we will have some arbitrary function where u itself is function of x, y, z. U and v both are some functions of x, y, z, and यहाँ से इसको मैं बोलता हूँ, मतलब the category is by removing arbitrary functions, right? By removing arbitrary functions. How to remove those? We will be dealing that in this introductory segment. Majorly we will have some equation like this, where p is the function of x and y, x, y, z, q is the function of x, y, z, r is the function of x, y, z. Small p will be a standard notation here. Let's say हम लेकर चल रहे हैं z as the function of x, y, z. So derivative z over derivative x will be denoted by small p. Derivative z over derivative y will be denoted by small q. Fine. In case of इसका अब होगा क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन. What does mean by classification of a PDE? It simply says कि the PDE is linear, semi-linear, quasi-linear and non-linear, right? And that all depend on this form. Let's say small p, small q का पावर 1 means derivatives are of degree 1. P is the function of x and y only. What? P is the function of x and y only. Q is the function of x and y only. R is the function of x and y only. So mainly when I say this linear part, what बच्चे? Linear PDE. Linear PDE itself says कि the partial differential equation is of the form. Fine. When I talk about semi-linear, it says the form should be like this. डिफरेंस चेक कीजिएगा, मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूं. ठीक है, then we'll end up on quasi-linear PDE, right? Quasi-linear PDE, please check the difference. Am I clear or not? Difference check हो रहा है. Then we'll end up with the non-linear PDE. Okay, and non-linear means this will be a PDE of the form this, right? It may be p square plus q square into x equals to sin z kind of stuff, right? So non-linear मतलब अब ये p क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Fine.
So basically number first target is formation of PDEs. Please mark star here and write PYQs. Many of us may think that UPSC won't ask questions from this simple segment. Then you are on the wrong track. They ask questions from this segment. अभी हम देखेंगे how they ask. Okay? चलिए, लीनियर, अब अपना काम क्या होगा मेरे बच्चे? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर. आप देखेंगे P एंड Q यूज हो रहा है केवल, कहीं पर भी डेवर 2z ओवर डेवर x स्क्वायर और डेवर 2z ओवर डेवर y स्क्वायर काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं है अपने पास. ओके, सो द फर्स्ट टारगेट इज टू डील फर्स्ट ऑर्डर लीनियर PDE, फर्स्ट ऑर्डर सेमी लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर कॉसी लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर. राइट? कोई डाउट यहां तक है तो बोलिए, किसी को भी नहीं ना? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. ठीक, सो दिस इज द चैप्टर 1, यू कैन से इंट्रोडक्टरी चैप्टर 1. The next we will be dealing of higher order PDEs. अब higher order PDEs में again the classification will be there, but the thing which we have learnt in the ODE will be same repeated as here, like solving PDE with constant coefficient, with variable coefficients, linear factors हैं, non-linear factors हैं. So we will have some methods here to find CF and PI. The same as we talked there in the ODE, that we will be talking here in non-linear, like singular solutions also. Fine. आफ्टर दिस हायर ऑर्डर PDE, एक्चुअली यहां पर भी अपने को एक क्लासिफिकेशन मिलेगा हायर ऑर्डर के अंदर भी. ठीक है, अब वो क्लासिफिकेशन क्या होता है, आराम से क्लास को मूव करते रहिए, पहले माइंड को स्टेबल कीजिए. ठीक है, सपोज दैट आई हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर. ठीक है, यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे डेवर 2z ओवर डेवर x स्क्वायर को r से, डेवर 2z ओवर डेवर x डेवर y को स्मॉल s से, एंड डेवर 2z ओवर डेवर y स्क्वायर को भी विल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल t. फाइन. So suppose that in a given higher order differential equation, small r का coefficient, what I am saying, small r का coefficient in the given equation is capital R, इसका coefficient is capital S, इसका coefficient is capital T. So based on these coefficients we try to find the value of s square minus 4rt. If s square minus 4rt comes out as positive, we will say this partial differential equation is hyperbolic PDE. क्या होगा ये? If this comes out as greater than 0, then hyperbolic, equal to 0, then parabolic, less than 0, then elliptic. So this is the classification of first order PDEs. This is the classification of higher order PDEs. Okay. After that, we will have a major segment here, canonical form. What? Canonical form. Canonical form के लिए how to convert or how to choose some independent variables u and v, that is a major part for us. So here we will do some examples and will make you understand कि this is not that much hectic. Fine. आराम से देखिए, दिमाग में सेटल हो जाइए कि करना क्या है. इंट्रोडक्टरी पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर, इसके बाद we will have a segment that will be special
PDEs. What is that chapter is actually ये जो classification है hyperbolic, parabolic, elliptic. For these three type of equations we will have here some physics problems. Some physics problems like heat equation, wave equation, okay, and so on. So we will be dealing this chapter because from here they ask question in IFOS as well as CSE from the measure like long answer type. Okay. यहाँ पर many people suffer. So what I did is I tried, ध्यान से सुनिए, I tried to classify each type of equation. Also sometimes they don't give the physics का interpretation in the question and then it becomes hectic for us कि वो PDE form करके कैसे उसको move करना है. So don't worry about this chapter. I will take just 1 hour from you and make everything clear from this segment. One question is very much sure from here for long answer kind of. Fine. So this is the job which we have to do in the partial differential equations. Okay. So अब क्या करेंगे, slowly हम लोग, एक पिक्चर क्लियर है आपके दिमाग में, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं so that on the based of revisions आपके दिमाग में चीजें रहें कि मुझे करना क्या है. फाइन, अभी हटा दें इसको. चलिए, so when we talk about this वाला इंट्रोडक्टरी है ना, सो क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बोल ही दिया था, लीनियर कॉसिलीनियर ये हो गया आपका. अब आप हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, चलिए यार, विंटर में ये बोर्ड रब करना बहुत टफ हो जाता है. चलिए, कुछ लोग तो पेशेंस ही लूज कर देते होंगे कि चलो यार अगले दिन अटेंड करेंगे हैं. If your teacher is not losing patience, then why you guys? चलिए, so हमने क्या हेडिंग डाला है, फॉर्मेशन ऑफ PDEs. Is it visible? देखना तो पड़ेगा, नहीं थोड़ा सा नहीं चलाना पड़ेगा. Formation of partial differential equations. Case 1. Case 1, by removing arbitrary constants. Okay, so I take some examples like, और आपको बोलते हैं क्योंकि वहां से आपको क्लैरिटी भी आ जाएगा. Okay. So suppose that I take a question, find the differential equation, find the differential equation of the set of all right circular cone, find PDE of right circular cone of set of all, okay, of set of all right circular cones whose axis
आर coincide with the z axis. ठीक है, चलिए अब अपने को क्या है, आप सोचेंगे कि वो आप एक को आपको रिलेशन देगा और आप वहां से दिस इज अ पी बाई क्यू. ओके, previous year question of your civil services exam. Why I took this question? Because as you know, if you are following this lecture series regularly, I'm not in the habit of doing this मनरेगा मजदूरी. Just convey the message with one solid example. और जो suggestions है वो मैं आपको पहले ही दे देता हूँ. So here what is my suggestion? I'm not going for the answer of the question directly. I am saying this question they ask in CSE means question hints we need to have good understanding of our topic 3D analytical geometry. So this is just one example. Another kind of examples may be there. So 3D in the paper 1 and PD in the paper 2. So formation of PDs में they can give some geometrical interpretation, and here it is expected to write the equation of that geometrical figure. बस इस फर्स्ट काइंड ऑफ फॉर्मेशन में मेरा आपको यही सजेशन था कि बच्चे प्लीज डू सॉल्व. तो यहां पर क्या करेंगे, सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स इन MDR. राइट, एग्जाम्पल्स आई एम सेइंग, एक्सरसाइज भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है. एंड हैव आइडिया अबाउट दिस. Is that clear? For example, this is the, अब क्या है, बस ये तो आपको बचपन से आता है. तो हम क्या करते हैं, to remove arbitrary constants we differentiate. right? अब क्या करेंगे, कितना arbitrary constant है अपने पास, 2. तो let's say differentiating one partially with respect to x. So 2x plus by x and y, since z is the function of x and y here, x and y are independent variables. Please notice. So derivar y over derivar x will be 0 or derivar x over derivar y will be 0. इंडिपेंडेंट इक्वेशन, डोंट थिंक 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, पीट दूंगा, ठीक है. x and y are independent variables, so partial differentiation of one with respect to other will be 0. okay, this is 2 into z minus c tan square alpha is just a constant, and suppose that I differentiate one पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2y इक्वल्स 2 इंटू जेड माइनस सी टेन स्क्वायर अल्फा. अच्छा, यहाँ का डेवर z ओवर डेवर x कहाँ गया, z का विथ रिस्पेक्ट टू x, z का विथ रिस्पेक्ट टू y. सो व्हाट आई डू इज जस्ट डिवाइडिंग 2 by 3, तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2 ये कट गया, x अपॉन y इक्वल्स डेवर z अपॉन डेवर x अपॉन डेवर z ओवर डेवर y. And there may be n number of ways to get such expression. The thing is notice, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जब आप फॉर्मेशन ऑफ PDEs में ध्यान देते हैं
तो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे वो ओडीई हो शुड नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. दिस ऑल्सो वी हैव टॉक्ड इन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, राइट. एक वहां लैम्डा वाला क्वेश्चन है, याद आया? वो इतना भयंकर क्वेश्चन है, बीएस ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स बच्चों को याद रहता है ना. चलिए, सो डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी फाउंड व्हेन यू आर एबल टू कंप्लीटली रिमूव ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, राइट. चलिए, आगे बढ़ो अभी. अच्छा, इसका पीडी लिखना है. अरे यार, हो तो गया ना, x अपॉन बाई इक्वल्स पी अपॉन क्यू. दिस इज p, दिस इज q. सो pd हो गया. सो कहाँ गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये. ठीक है, ऐसे ही आगे आप देखेंगे. सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोन्स, एग्जाम्पल 9, विच हैव देयर वर्टेक्स एट द ओरिजिन. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. एग्जाम्पल 9 ओवर MDR. ठीक है, ये मैं PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जहां से मैं जो रेफरेंस दूंगा. सो द क्वेश्चन आप सुन लेंगे, आप अपनी बुक में भी देख लेंगे. सो दैट ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कोन्स विच हैव देयर वर्टेक्स एट ओरिजिन. अगेन आया ना 3D से. तो कोन वर्टेक्स एट ओरिजिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको चीख चीख कर पढ़ाया था कि कोन का इक्वेशन. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन हियर, डू फॉलो द लेक्चर कोन. आई गेस इट इज 8th और 9th लेक्चर इन द एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर सीरीज. फाइन. तो एक कोन, तो मैंने क्या बताया था उस टाइम कि ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, a homogeneous equation of second degree always represents a cone with vertex at origin, where A, B, C, F, G, H are arbitrary constants here. But this is the question, and such questions are expected in your paper 2 PDE में जब formation of PDE पूछता है वो आपसे. तो don't think कि फॉर्मेशन से क्या पूछेगा, ये तो बहुत आसान है. नहीं, दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर. और कैसे पूछते हैं वो यही सब आपको फंसा लेते हैं. ठीक है. सो अभी इसमें बस ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है. मेरा सजेशन आपको ये है, हीरो बनना नहीं है आपको. इसका जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है वहां पर आप एक तो अपने आप ट्राई कीजिए पहले रिमूव करने का, आपका बैंड बजेगा. उसके बाद देखिए कैसे टर्म्स को मैनेज करके उन्होंने डिफरेंशिएट किया. पहले तो पहला प्रोसेस तो क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, एंड y. उसके बाद x y से मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को मैनेज किया है. और ये मुझे फ्रॉम द डे 1 याद है ना. सो आई वॉन्ट योर प्रिपरेशन टू बी लाइक दिस. फाइन, आगे बढ़ो अभी. सो प्लीज अटेम्प्ट ऑल सच क्वेश्चंस. नाउ वी मूव ऑन द framing partial differential equations by removing arbitrary functions. चलिए, here also we are very much expected. Every year almost they ask question from this segment. चलिए, suppose that we have been given a relation. Mic is working or not? Fine. Suppose that we have been given a relation, some function of u, and this is very important. Please, no one is going to ask you the proof, but I will do the proof because this will make you feel that why Lagrange multiplier method is working like this. What is Lagrange auxiliary equation? Why those are like that? So you should have a better understanding for this. Fine. चले. Let's say this. Here u itself is some function of x by z.
and v itself is some function of x, y, z. Okay, so let's say this is 2. Abhi what I wish to have, I want to form a partial differential equation by removing this arbitrary constant, this arbitrary function phi. What? By eliminating phi, we want to form a partial differential equation. So how to remove that? For that I'm gonna tell you. Please learn the process. What I do? अच्छा, since phi is the function of u and b, so how you will write d phi? चल भी कैसे लिखेंगे? डेवर phi over डेवर u into डेवर u plus डेवर phi over डेवर v into डेवर v. Why I am writing not dv here? Because dv or du, because u again function of some variables. So now as phi is 0, so d phi is 0. This is डेवर phi over डेवर u, right? अब if I want to know what is du, ठीक है, suppose that if you write du, तो इसको आप कैसे लिखते? डेवर u over डेवर x into dx plus डेवर u over डेवर y into dy प्लस डेवर u ओवर डेवर z इंटू डी जेड, राइट? आप यही लिखते। चलिए अच्छा, दूसरा वाला फ्रैगमेंट भी तो है, प्लस डेवर फाई ओवर डेवर v, dv कैसा लिखा जाता? डेवर v ओवर डेवर x इंटू डी एक्स प्लस डेवर v ओवर डेवर y इंटू डी वाई प्लस डेवर v ओवर डेवर z इंटू डी जेड, राइट? सो इफ आई कम हियर, तो यहां से अपने को एक रिलेशन मिल सकता है डेवर फाई ओवर डेवर u डिवाइडेड बाई डेवर फाई ओवर डेवर v। तो मैंने इसको तो यहां रखा और इसको इधर में भेज दिया, लेट से माइनस साइन मैंने यहां पर रख लिया, ठीक है? सो दिस विल बी डेवर v ओवर डेवर x इंटू डी एक्स प्लस डेवर v ओवर डेवर y इंटू डी वाई प्लस डेवर v ओवर डेवर z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई दिस वाला सेगमेंट। फाइन, यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बोलिए, किसी को भी? नॉट। सिमिलरली अभी मैंने क्या किया, यहां पर डेवर, अब देखिए कुछ लोग यहीं पर मैनेज कर लेते हैं और कुछ इसके बाद करते हैं। लेट्स से इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं 4, प्लीज हैव पेशेंस हियर एंड दैट इज द ओनली क्रूशियल स्टेटमेंट हियर। इफ आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट, यहां से डी फाई ओवर डी एक्स लिखना चाहूं, सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, डेवर फाई ओवर डेवर यू, क्या लिखना चाह रहा हूं, डी फाई ओवर डी एक्स। सो डेवर यू ओवर डेवर एक्स, ये कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा, डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1, ध्यान देना इस चीज को, x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दैट इज कैंसल्ड, dz का विथ रिस्पेक्ट टू x डेवर z ओवर डेवर x। सिमिलरली यहां पर इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, तो दिस विल बी, नहीं सॉरी, वो तो x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा था, पहले मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं फिर y के। सो दिस इज 1, दिस इज 0, ठीक है? लेट्स से दिस इज द, अब इसी इक्वेशन को लेट्स से आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगेन मेरे पास क्या मिल जाएगा, डेवर फाई ओवर डेवर u, द सेम फ्रैक्शन, बट अब अंदर वाला जो सेगमेंट है इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेवर v ओवर डेवर x इंटू 0, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू y इज 0, प्लस डेवर u ओवर डेवर y, दिस विल बी 1 प्लस डेवर u ओवर डेवर z इंटू डेवर z ओवर डेवर y, अब डिवाइडेड बाई डेवर v ओवर डेवर x इंटू 0 प्लस डेवर v ओवर डेवर y इंटू 1 प्लस डेवर v ओवर डेवर z इंटू
dever z over dever y. Let's say this is the equation 6 for us. Okay. So abhi what I will do, I will equate 5 and 6. When I will equate 5 and 6 and I will manage the term, you just equate, manage the term as coefficient of dever z over dever x plus coefficient of dever z over dever y. दो ही तो डेरिवेटिव दिखेंगे, डेवर z ओवर डेवर x दिखेगा, डेवर z ओवर डेवर x, डेवर z ओवर डेवर y, and this will be equal to whatever the remaining things other than the coefficients of derivative. Okay. अब आप कहेंगे कि सर ये कोएफिशिएंट मैनेज करके लिख दीजिए. You just try 1 or 2 times, उसके बाद you will be getting here it is nothing but डेवर y. ये जो आपको यहां पर मिलेगा ना, एक्चुअली मैं इसको नोटेशन में लिख रहा हूं, जैकोबियन ऑफ बाई जेड, आई एम सॉरी, जैकोबियन ऑफ यू वी अपने पास था, वाई जेड यहां पे मिलेगा जेड एक्स, और यहां पर ये जो आर होगा दैट विल बी एक्स वाई. ठीक है, क्या मिलेगा? अब जैकोबियन किसका? बाई जेड समझना, सिर्फ बाई जेड का जैकोबियन तो होगा नहीं, u और v का विद रिस्पेक्ट टू होगा ना, तो u और v का विद रिस्पेक्ट टू y एंड z, u एंड v का विद रिस्पेक्ट टू z एंड x, u एंड v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. Why I put like this? Because ultimately when they ask questions in the PDE form, many people remember this formula. Only I told how this formula comes into the picture. अगर आपको जैकोबियन में दिक्कत आ रहा होगा तो जैकोबियन ऑफ u and v with respect to y and z is nothing but dever u over dever y, dever u over dever z, dever v over dever y, dever v over dever z, and this can be written as dever u over dever y into dever v over dever z minus dever u over dever z into dever v over dever y. तो on managing, on putting 5 equals to 6, जहां पर भी आपको ये जो फ्रैक्शन दिखेगा ये दिख रहा होगा यहां पर डेवर z ओवर डेवर x का कोएफिशिएंट. अब है क्या ना, इतने बार किया है ना, सब कुछ सेट है दिमाग में, क्या करें. ये हो गया. सो अभी व्हाट यू कैन रिमेंबर इज by removing the arbitrary function phi we will get a PDE of the form जैकोबियन ऑफ phi ऑफ u, b 0 दिया होगा आपको. जैसे मान लो यहीं पर आपको बोला फॉर्म, एग्जाम्पल भी मैं कराई देता हूं, फॉर्म PDE बाय eliminating phi from x plus y plus z comma x square minus y square equals to 0. तो इस केस में क्या होगा बच्चे अपने पास, what I told you, एक तो प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया, and you by using this u equals to what, x plus y plus z, v equals to what, x square minus y square. So Jacobian of uv with respect to yz क्या मिल जाएगा, डेवर u over डेवर y that is 1, डेवर u over डेवर z 1, डेवर v over y that is minus 2y, डेवर v over डेवर z 0. So it ultimately comes out as 2y. Similarly Jacobian of ub with respect to zx. So डेवर u over डेवर z 1, डेवर u over डेवर x 1, डेवर v over डेवर z 0, डेवर v over डेवर x 2x. So it comes out as 2x. Jacobian of ub with respect to xy. So डेवर u over डेवर x is 1, डेवर u over डेवर y is 1, डेवर v over डेवर x is 2x, डेवर v over डेवर y is minus का 2y. So it ultimately comes out as
माइनस 2y माइनस 2x, माइनस 2 कॉमन ले लिया, बाहर बचा y प्लस एक्स। इसलिए रिक्वायर्ड PDE इज, चेक कीजिए, पहला कंपोनेंट जैकोबियंस ऑफ बाई जेड, सो 2 पाई इंटू डेवर जेड ओवर डेवर एक्स प्लस 2x इंटू डेवर जेड ओवर डेवर वाई इक्वल्स टू आर एक्स बाई जेड। तो वो उसका वैल्यू क्या मिला है, माइनस का, राइट। सो फाई दिख रहा है क्या यहां पर, फाई इज नॉट प्रेजेंट, मीन्स यू हैव रिमूव्ड फाई एंड गेट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Am I clear to y'all? चलिए, one more thing here I will suggest, there are some questions in this examples of arbitrary functions वाला, ठीक है। मेरा suggestion, my personal suggestion for you, again I am saying, please do solve all those examples. अगर आपने सॉल्व नहीं किया यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, और हर बार वो एफ एंड जी वाला है ना, वो तो गाय बगाए पूछ ही लेता है आपसे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है ना, पता नहीं इधर उधर से घुमा के बार बार पूछ देता है, ठीक है। जैसे फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आर्बिट्रेरी एफ एंड जी। Actually what happens is sometimes they give a relation, like suppose that z equals to f of x square minus y square plus g of x square plus y, let's say, okay, and they say form a PDE by removing arbitrary functions f and g. Please mark star here and do remember what we learned. हमने क्या सीखा अभी कि if the relation is given like this then the PDE is, जो मैंने अभी आपको बताया, but if the relation is not like this then how to deal that. So इसका जो simple procedure है, प्रोसीजर ये है कि डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेट्स से मैं इसको डेवर जेड ओवर डेवर एक्स करूं, सो एफ का डिफरेंशिएशन, मतलब दिस प्रोसीजर इज सेम एज रिमूविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला, राइट। ऑल्दो दोज आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस, बट इनका जो प्रोसीजर है दैट विल बी सिमिलर टू द केस 1। बस इतने से आप समझ जाइए आपको करना क्या है वहां पर, ठीक है। तो एफ डैश आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, और जी डैश आएगा प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स स्क्वायर का 2x। सिमिलरली डेवर जेड ओवर डेवर वाई करेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का 2y प्लस जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई। Now from 1 and 2 you have to remove f and g. You are getting my point or not? How to manage those terms here? How to manage, बस यही एज ए मेंटर मेरी आपको सलाह है, रेस्ट इज अप टू यू। And please do solve such examples because they ask in your exam, damn sure I'm saying, ठीक है। आगे बढ़े अभी, चलिए। The next segment is solving PDEs, ठीक है। Solving PDEs of the form, solving PDEs of this form P into small p plus Q into small q equals to R. Fine. Now you tell me what is the partial differential, how you got such differential equation, कहां से आया था? Phi of
u v इक्वल्स टू 0 जब आपने किया था, वेयर u इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v is some function of x y z. If you correctly remember, by removing this arbitrary function phi, we get a differential equation of this form or not. So what you can say, 2 is the general solution of 1. What? 2 is the general solution of 1, because this PDE is being found by solving by differentiating this is called general solution of this. Ultimately I have to find, क्या करना होगा इसके लिए, तो फिर to solve 1 we need to find u and v. समझना बात को. इसके लिए they write Lagrange auxiliary equations. ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल्स dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स dz अपॉन r. ठीक है, अब यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं. एक्चुअली इसी के ऊपर में जब कॉची प्रॉब्लम आता है ना, इनिशियल कंडीशन दे देता है, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को बताने को रहेगा, बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ बताने को नहीं है. बट फॉर यू नीड टू डू ऑल एग्जाम्पल्स. कैसे, मैं भी बता रहा हूँ. सो हम क्या करेंगे, whatever the differential equation is given in this form, first we will write these by taking first two fractions if variables are separated, or by taking this, or by taking combination of those. ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको मिलेगा Lagrange मेथड. ठीक है ना, सॉरी Lagrange मेथड, Lagrange मल्टीप्लायर्स. ओके, सो अब वो कैसे चूज करने हैं, सो दैट एक्चुअली होता क्या है ना, एक ही कंपोनेंट है कि अगर आपने लेट से दिस इज गोन एज सम अल्फा dx प्लस बीटा dy प्लस गामा dz एंड p अल्फा प्लस q बीटा प्लस r गामा. आपने क्या किया, you just multiply this by alpha, this by beta, this by gamma, so denominator also. Ultimately if you got this term as 0, तो क्या होगा, you will have alpha dx plus beta dy plus gamma dz. इस 0 को किसी भी एक फैक्टर के साथ रख दोगे तो RHS will be 0. Now if this alpha is some function of x only, this is some function of y only, and this is some function of z only, then by integrating this you will have a relation. For example, अगर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाए, ये वाई आ जाए, ये जेड क्यूब आ जाए, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड पावर 4 बाई 4 इक्वल्स टू सम आर्बिट्ररी इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1. सो दिस इज योर uxyz. Similarly, by choosing other multipliers, you can differentiate and you will get some other vxyz, and your answer will be, complete solution will be phi of this segment comma this segment equals to 0. Clear? So what I'm gonna do for you here, listen it. होगा क्या, आपके जब आप इसमें देखेंगे सॉल्यूशन वाले में, देयर आर सेवरल केसेस ऑफ चूजिंग सच मल्टीप्लायर्स. सो एज ए स्टूडेंट आई ऑलवेज वाज थिंकिंग कि यार चलो 2-4 कर लेते हैं, हो जाएगा. नहीं, बस एक सेकंड में आपका टर्निंग पॉइंट इस चैप्टर का बोल देता हूँ. देखिएगा, यू नो व्हेनेवर आई टीच यू ना, आई कंसीडर माई सेल्फ एज एन UPSC एस्पिरेंट. ओके, एग्जाम्पल्स जो हैं MDR में, आप क्या कीजिए, इसके कई सारे केसेस 1 2 3 केस 4 तक आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है,
एक दिन बैठिए, जो मल्टीप्लायर्स हैं, ठीक है, एक लिस्ट बना लेना। लिस्ट ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन में ये है, दूसरे क्वेश्चन में नहीं ये है, आप ना केवल ये लिख लेना। जैसे कहीं कहीं आपने 1 - 1 1 चूज किया होगा, कहीं x बाई 1 चूज किया होगा, कहीं x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ऐसे करके लगभग 15 to 20 आपके पास ये सेट दिखेगा, है ना। तो इससे आपको क्या हेल्प होगा, व्हेन यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यूनिवर्स में जितना पॉसिबल है सब चेक करना है, नहीं। आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि यार x क्यूब 1/बाई भी मल्टीप्लायर एक बार चूज करा था किसी एग्जांपल में, उसको ट्राई करें इसमें। किसी में x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर 0 1 चूज किया था, चलो लेट्स ट्राई हियर। तो ये मैंने अपने मेंस के दौरान किया था एंड रियली हेल्प्ड मी। ओके, तो MDR के जो एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, उन एग्जांपल्स में जो जो मल्टीप्लायर यूज हुए हैं उनको जस्ट शॉर्ट में एक जगह लिख लेना, केवल मल्टीप्लायर ऐसे इंडिकेट करके, ठीक है। एंड देन सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल्स, एंड व्हेन यू कम ऑन द की व्हाट मल्टीप्लायर टू बी चूज, जस्ट ट्राई टू रिमाइंड दैट दिस इमेज, ओके, you'll be feeling good there. Fine? चलिए, सो लीनियर पीडीई को सॉल्व करने के लिए ये मेथड अपने पास रहता है। इसी में क्या करता है, कई बार इनिशियल कंडीशन देके आपको प्रॉब्लम पूछ लेता है, ठीक है। वो हम लोग इसमें नॉन लीनियर में भी करते हैं, कॉशी प्रॉब्लम्स में, 4 पिट वाले में, ठीक है। सो है क्या, I will share a PDF with you with those very good questions. अरे बाप रे बाप, I guess थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं होगा तो पता नहीं, प्लीज डू लेट मी नो। इसलिए I will share a special PDF in which I have categorized और easy to understand only, ठीक है। तो पहला जो ये लेक्चर का पहला पार्ट रहा हमारे लिए, that was basically to deal lecture plan, formation of PDEs, introduction, classification, then solving first order linear PDEs, multipliers में what to take care, कॉशी प्रॉब्लम वाला जो सेगमेंट है उसके लिए आई विल शेयर अ स्पेशल PDF विद यू एंड प्लीज ट्राई सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। सॉल्व क्या मतलब, वो सॉल्व तो है ही, एक बार उनको देख जरूर लीजिए कि हाउ यू मैनेज दोज टर्म्स। फाइन, बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, बस लास्ट के जाके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहां पर फंक्शंस में बात करनी होती है, एंड दैट आई हैव डिटेल्ड वेरी वेल फॉर यू। ओके, तो जस्ट टू सेव योर टाइम दिस आई डू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अभी लेक्चर ब्रेक करना है क्या? डोंट ब्रेक यार, आई हैव डिसाइडेड कि मैं पीडी एक ही बार में फिनिश कर दूं, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नॉन लीनियर पीडी, ठीक है। नॉन लीनियर में क्या क्या अपने को याद रखना है, कहां पे अपन फंसेंगे, इस चीज के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ओके, सो नॉन लीनियर पीडी मैंने, चलो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर एंड व्हाट वी वर डूइंग इज, अभी तक हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीज, राइट। नाउ वी आर गोना स्टार्ट फर्स्ट ऑर्डर सर्दी बहुत है ना। चलो, फर्स्ट ऑर्डर linear PDEs already we have done. Now we are doing non-linear PDEs, right? My suggestion always for you, be consistent, just listen words and follow those words. Here it is not matter of something like pure mathematics to make you understand more things. Formulas are there, how to apply that formula, that is okay, but in between of the questions, here the key word is steps of the answer where you can struck up, for that I am here. This PD, इसलिए पहले मैंने ये सोचा था मैं इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। फिर मुझे लगा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, मैं उनमें बच्चों को बता के रखता हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर,
how this non-linear PDEs comes into the picture. Actually this will be represented by something, equation. This I already told you in the starting of the lecture and the classification. F of x, y, z, pq equals to 0. Let this is some given PDE and you want to solve this PDE. What? और यहाँ पर z क्या होता है बच्चे? z is the function of x and y. x और y क्या है? x and y are independent variables. Right? Please focus here. If z is the function of x and y are independent variables, so मेरे बच्चे dz how we can write? Dv z over dv x into dx plus dv z over dv y into dy. Moreover, this can be written as p dx plus q dy. Right? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं. So to solve, our target is what? Target is solving non-linear PDEs of order 1. So what we do here is we try to write the given differential equation in this form. That is your first task. Okay. Second task, we write Charpit's auxiliary equations. Charpit's auxiliary equations. अब ये जो Charpit's auxiliary equation है, persons who are doing it very first time, they may feel कि this itself a task है ना. फिर भी आप किस सीक्वेंस में उनको लिखते हैं that is up to you. For me, let's say I start from dp. ठीक है, p वो अपने को पता है, dv z over dv x. ठीक है, dp upon fx plus pfz. What it is denoting? Fx means dv f over dv x, fz means dv f over dv z. F is what? The given relation. Right? चलिए, अब मैंने यहाँ पर टाइम क्यों लिया? क्योंकि एक टर्म लिखने के बाद बाकी के जो टर्म है वो सिमेट्रिकल इन नेचर रहते हैं. तो अगर आपको चारपिट्स याद करने में दिक्कत होती है तो पहले एक लिख लीजिए. ठीक है, अब P के बाद यहां पर लिख दीजिए मेरे बच्चे Q. dq करेंगे तो यहां पर बाई कर दीजिए, यहां पर Q कर दीजिए और इसको एज इट इज रखिए. कोई दिक्कत है तो बताइए. कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब इसके बाद dx अपॉन dy अपॉन एंड dz. फाइन. अब dx अपॉन क्या लेना है उसके बारे में अगर कंफ्यूजन है तो यहां पर लेट से अभी लिखना नहीं, fx fy और z इज द कॉम्बिनेशन ऑफ fx एंड fy. ठीक है, हाउ टू रिमेंबर चारपिट्स? अभी प्लस माइनस मैंने नहीं किया आपके सामने. ठीक है, अभी केवल आपको ये इक्वेशन लिखना मैंने बोला है. अब है क्या, द MDR जो आप फॉलो कर रहे होंगे वहां पर कुछ लोग यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ यहां से करते हैं. जो MDR वाला है उन्होंने चलो कहां से किया है, यही से किया है, dp अपॉन. अच्छा, अरे ये क्या लिख दिया यार, fp. x p के साथ आ चुका है ना, तो यहां जब x और y रहेगा तो यहां पर आएगा fp और fq. ओके, सो pfp और qfq. अब प्लस माइनस चेक कर लेते हैं. इफ यू स्टार्टिंग लाइक दिस तो यहां पर माइनस fp माइनस fp माइनस fq और ये हो जाएगा माइनस p fp जो है p इंटू fp q इंटू fq. अब आप चेक कर लीजिए,
माइनस पी इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू माइनस एफ पी माइनस एफ क्यू। अभी कुछ बुक्स में भाई आई एम टेकिंग एमडीआर का रेफरेंस बिकॉज सम बुक्स दे मे कंटेन माइनस ईयर एंड दीज आर ऑफ प्लस, सो नथिंग टू बॉदर हियर आई एम सेइंग। So we need to remember these Charpit's auxiliary equation. Fine? कैसे करना है अब मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े अभी। तो आप कहेंगे कि सर इससे होगा क्या? होगा ये with the help of, इसको ध्यान से देखिए बच्चे, with the help of above auxiliary equations we will try to find small p and small q. Let's say this is some function of xyz, let's say this is another function of xyz. Fine, mark star here. So to solve non-linear PDEs, first thing is given PDE को ऐसे लिख लीजिए. So this will be your small f of x y z p q equals to 0. ठीक है. अब देखिए मैं आपको स्टेप्स करना बता देता हूं इसके. Step 1, write the given PDE in the form f of x by z pq equals to 0. पर्सन्स में थिंक कि सर मुझे तो आता है, मैं ये वाला लेक्चर नहीं देखूंगा, आपकी श्रद्धा है, हो सकता है, लेकिन बट आई विल से कि इफ यू फॉलो दिस लेक्चर समथिंग यू विल एब्सोल्युटली गेट, either to save the time or to increase the accuracy. So write down this. Step 2, आप डेवर एफ ओवर डेवर एक्स निकाल के यहां लिख लीजिए. ख्याल रखिए पहला काम आपका यही रहना चाहिए. एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ पी एंड एफ क्यू. The first and foremost task for you is to have such expressions, dever f over dever x, dever f over dever y, dever f over dever p, dever f over dever q, dever f over dever z. अब इनसे होगा क्या? Using in auxiliary equations. Using in auxiliary equations, अभी आपको सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेट एफ पी एज 0, समझना बात को, ठीक है, एफ पी एज 0 एंड लेट से एफ एक्स आपको मिल गया पी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात कर रहा हूं, तो इस और इस फैक्टर से आपको क्या मिल जाएगा, देखो डी पी ओवर एफ पी, एफ एक्स इज पी and that is dx over 0. So dp equals 0. So p is some arbitrary constant. And what I said, what is the target of Charpit's method? Finding p and q. So this is just an example for you कि wow, if you are having these terms in front of your eyes, then it will be very clear कि अच्छा what factors or what combinations from auxiliary equations should be taken to get p and q easily. Am I clear or not? अब हम आते हैं स्टेप 3 पर. Let's say you got p and q from auxiliary equations. Finding these p and q from auxiliary equation, use the relation p dx dz equals to p dx plus q dy. p is with you, q is with you. So ultimately you have something like, let's say this is f1, वो लिखा तो है वहां पर p को, let's say this is psi of xyz dx, this is some c of xyz dy, right?
मार्क स्टार हियर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा सांस लूंगा, सांस तो ले ही रहा हूं। चलिए, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, जिसका LHS इंटीग्रेट करोगे तो आपको Z मिल जाएगा, बिकॉज dz इज देयर। हाउ टू इंटीग्रेट, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सो यू विल बी गेटिंग योर Z एज सम फंक्शन ऑफ XYZ plus some arbitrary constants. What? A and B are arbitrary constants. Am I clear to you all? कोई डाउट किसी को? This will be known as the complete solution. ध्यान देना, यहां पर वर्ड्स का भी बहुत फोकस है। OD में तो उतना परेशान नहीं किया था। The complete solution of the given PDE. So here please remember the definition of complete solution. A solution, write down, a solution which contains that many arbitrary constants as the number of independent variables. Number of independent variables are 2 as x and y. Number of arbitrary constants are 2. So this relation is called the complete solution of one. Complete solution or complete integral, right? Chalo. Because here we will have another term as general solution, which in the ODE, general solution in the ODE, as I stated, if you remember the lecture 1 of ODE, I told you that in PDE there will be some different classification, so don't confuse here, and but you have to remember, because in the question you have to find it. General solution, अब देखिएगा, the complete solution which you get from here, if suppose that B is some function of another arbitrary constant HA, तो ये जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में दिख जाएगा? XYZ A HA, right? Now this can be written as Z minus phi of this goes to 0. If I do Dever over Dever A of this of 1 equals to 0, by solving कौन सा? इस रिलेशन को, एंड डेवर ओवर डेवर ए ऑफ दैट रिलेशन, वी गेट द जनरल सॉल्यूशन। ख्याल रहे, हियर इट इज W infinite solid और like family of curves. This is again a family of curves. Okay मेरे बच्चे? Because here we also we have arbitrary constant. One more word is used here as singular solution. राइट, सो सिंगुलर सॉल्यूशन, ये तो मैंने वहां पर भी बताया था, विल बी अ सॉल्यूशन, अगर मैं इसको यहां से देखूं ना, z माइनस फाइव ऑफ दिस गोज टू 0, दिस इज द रिलेशन। अभी आप इसको कुछ नंबर क्या बोलूं इसको मैं, लेट्स से इसको जाई डैश बोल देता हूं, ठीक है? तो डेवर ओवर डेवर ए ऑफ जाई डैश इक्वल्स टू 0 कीजिए, डेवर ओवर डेवर वी ऑफ जाई डैश इक्वल्स टू 0 कीजिए, एंड बाय सॉल्विंग दीज थ्री रिलेशंस arbitrary constants will be removed, and that if satisfies 1, please focus my word here, that if satisfies 1, then that solution will be known as a singular solution. Please note down the satisfy word. You getting my point or not? So here we will have three terms. Number 1, complete integral. Number 2, general integral. Number 3, singular integral. Integral and solution are the same words. Okay? कोई दिक्कत किसी को भी?
आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस। चलिए, सेटिस्फाई वर्ड पर याद रखिएगा सिंगुलर में, नहीं तो आप फंसेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे यहां पर और आपको बताएंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो स्टार मार्क मैंने करवाया था, यहाँ ध्यान रखिए, कई बार यहाँ पर आपको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो फफियन करके चैप्टर है आपके एमडीआर में, फफियन और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां पर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बताया गया है। सो यू कैन रेफर दैट चैप्टर, अदरवाइज यहाँ तो इजिली हो जाता है। इजिली क्या, देयर विल बी सम सब्स्टिट्यूशंस और एग्जैक्ट डिफरेंशियल mdx प्लस ndy काइंड ऑफ, याद आ रहा है, एग्जैक्ट वर्ड यहां पर लिख लेना, क्योंकि ये मास्टर ना पूरा रिसर्च करेगा कहां कहां तुम्हारा बैंड बजेगा, ठीक है। जहां तुम्हें हवा लगा कि आहा पी और क्यू बढ़िया मिल गया, अब तो कर ही दिया जाएगा, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं एग्जाम्पल, वही तुम फंसोगे, मरोगे तुम वहां पर। तो करना क्या है कि अपने को यहां पहुंच के कैसे z निकलना है, यहां पर इसको कैसे क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज अ मेजर स्टेप ऑफ चारपिट मेथड। यही गलती होती है और यहीं आप टाइम वेस्ट करते हैं, बाकी आपकी श्रद्धा। चलिए, लेट्स मूव। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल आपकी समझदारी के लिए लूंगा और आपको मजा आएगा उसमें, आई गेस। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल of z equals px plus qy plus p square plus q square, राइट। तो अभी अपने को क्या स्टेप 1 क्या था, बोलिए। सबसे पहले उसको मैं इस फॉर्मेट में लिख लूंगा, कुछ लोग z को उधर ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो प्लस माइनस बाद में कांस्टेंट में मैनेज हो जाता है, इक्वल्स टू 0। इसलिए f ऑफ x बाई जेड पी क्यू क्या हो गया, z माइनस पी एक्स माइनस क्यू बाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, चारपिट्स ऑक्सिलियरी इक्वेशंस। क्या है चारपिट्स, अगर आप dp से स्टार्ट करते हैं तो dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, डी क्यू अपॉन एफ बाई प्लस क्यू एफ जेड, डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी, डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू, डी जेड अपॉन माइनस का पी एफ पी माइनस का क्यू, पी इंटू दिस प्लस क्यू इंटू दिस, कुल मिला के ये याद रखिए। चलिए, सो अपने को क्या मिल जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ पी एफ क्यू निकाल कर लिख लीजिए साइड में, आपको आसानी रहेगी। सो डेवर एफ ओवर डेवर एक्स, बताइए, माइनस पी, इज इट पार्शियल। अब यहां पर नहीं, माइनस 2p इंटू डेवर पी अपॉन डेवर एक्स कर दीजिए, ठीक है, राइट। एफ वाई माइनस का क्यू, एफ जेड 1, एफ पी माइनस का एक्स माइनस का 2p, एफ क्यू माइनस का बाई माइनस का 2q, राइट। अब देखिएगा, वाई यूजिंग दीज इंफॉर्मेशंस हियर, व्हाट यू गॉट, dp अपॉन एफ एक्स क्या है,
माइनस पी प्लस पी इंटू एफ जेड, डी क्यू अपॉन एफ बाई क्या है माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू एफ जेड, यहां से डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी, सो एक्स प्लस टू पी, दैट इज बाई प्लस टू क्यू, दैट इज डी जेड अपॉन p इंटू एक्स प्लस टू पी प्लस माइनस ऑफ प्लस आ जाए, ठीक है, बाई प्लस टू क्यू, राइट। अब यहां पर थोड़ा सांस लीजिए आप लोग, क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं और आपको ये दिखा रहा हूं। आप देखिए यहां पर क्या है dp अपॉन जीरो, यहां पर क्या है dq अपॉन जीरो, these all three terms are same. अब if I take this and this, so what I will get? dp equals 0 on integrating this, p equals to some arbitrary constant, right? If I take this and this equation, so dq upon 0 equals to something means dq equals to 0, so q is some another arbitrary constant. So मेरे दोस्त, what was the target of step 1? To get small p and small q. So वो अपने को मिल गया. Now let's move on step 2. What is, since z is the function of x and y, so dz is d over z over d over x into dx plus d over z over d over y into dy. d over z over d over x is nothing but p, d over z over d over y is nothing but q. Using p and q from step 1 here, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dz equals to a dx plus v dy. On solving this differential equation, z equals to ax plus vy. कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। चले, so that is the point for you. अब देखेंगे एक काम जो यहां पर रहता है, पुटिंग p equals to a, required complete integral is z equals to ax plus by plus b square plus qa square. अब ये जो रिलेशन आपको मिला है, यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी रहेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेट्स से आपने उसको c नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, c. अभी आपको यहां से p q और z जो मिल रहा है, अब आप उसको गिवन रिलेशन में पुट कर दीजिए, यू विल हैव योर कंप्लीट सॉल्यूशन. व्हाट, कंप्लीट सॉल्यूशन. सो कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर पुट कर दीजिए p q को, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, पी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. एम आई क्लियर और नॉट? किसी को डाउट है तो बोलेंगे, टेल मी प्लीज. इफ एनी डाउट यू हैव देन प्लीज रेज योर वॉइस. फाइन, आगे बढ़ो. अब यहां पर क्या हो सकता है, वॉट आर द पॉसिबिलिटीज, उसके बिहाफ पर ये पूरा चैप्टर अब मूव करेगा. देखिए आगे करके इन्होंने टाइप 1 प्रॉब्लम्स, टाइप 2 प्रॉब्लम्स इस टाइप से लिखा हुआ है. सपोज दैट आपको ये वाला टर्म तो 0 मिल गया, ठीक है, और ये मान लो 1 मिल गया, कोई कांस्टेंट मिल गया, देन हाउ टू डील. Suppose that this term as you got 0, then how to deal getting. So there may be multiple choices or combinations depending on these expressions. By using these expressions here in the Charpit's auxiliary equation, we may have different possibilities. तो उसी possibility के बेस पर हमें क्वेश्चन करने होंगे. For example,
मैं क्या कह रहा हूं, इफ गिवन पीडी इज एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स टू 0। क्या है गिवन पीडी? एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल्स 0। तो इसका एफ एक्स क्या होगा? 0। एफ वाई क्या होगा? 0। एफ जेड क्या होगा? 0। तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड जहां जहां 0 हो रहे हैं वहां पर क्या मिलने लगेगा आपको? डी पी अपॉन 0 इक्वल्स डी क्यू अपॉन 0 एंड सो ऑन। अभी इसको सॉल्व करके P और Q आपको मिल जाएगा। dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में यूज करके यू कैन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन और नॉट। सपोज दैट दिस इज केस 1। केस 2, सपोज दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ x p q। So there may be different cases for that, and that is what MDR book में has done. They dealt different cases. What my suggestion for you? Because इसमें मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं यार, ये जो बस बच्चों वाले काम है, बस मैंने आपको ब्रीफ कर दिया ये चैप्टर मूव कैसे करेगा। Is that clear or not? तो इस चैप्टर को मूव करने के लिए ये जो डिफरेंट केसेस है, लेट्स से फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड इक्वल्स टू 0, तो आपको मैं ये कहूंगा डिफरेंट केसेस जो ये हैं, हर केस का पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि लेट्स से इफ द गिवन रिलेशन इज ऑफ दिस फॉर्म देन हाउ दीज विल बी लुकिंग लाइक। ऑन पुटिंग दीज इन चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन व्हाट द रिलेशंस वी हैव, हाउ टू लाइक इफ दिस इज गिवन देन व्हाट इज कमिंग एज p एंड व्हाट इज कमिंग एज q easily. Based on that, how I will write that complete solution. So my suggestion, ये PDF जो मैंने आपको शेयर करूंगा, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं यहाँ पर। Almost जहां wherever you can struck off in examples, this is the कारस्थानी of aspirant life mine. So एक स्टेप जहां पे आप फंस सकते हैं, इंटीग्रेशन वाले पे फंसेंगे, एक्सप्रेशन वाले पर फंसेंगे। कहां फंसेंगे मैंने एग्जांपल में या तो वहां अंडरलाइन किया है या नोट लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको कहूं पेज नंबर 3.14 पर आप देखेंगे नोटिसिंग द पॉइंट, ठीक है। तो अब आप वहां पर देखिए जरूर कि मैंने वो वहां क्यों लिखा। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट? अब इसको मैं यहां करा के ऑनलाइन स्टडी का इंपॉर्टेंस एकदम जीरो नहीं करना चाहता। एंड मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, आई डोंट वांट कि लेक्चर्स आर सो बोरिंग कि आप उनको 2x और 5x स्पीड पर चला के देखें। अरे कंटेंट सॉलिडिफाई करके मैं आपको दे रहा हूं, और ये जहां आप फंसेंगे वहां पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए काम कर रखा है ना। अब इसी चीज को बता के मैं 1 घंटे का वीडियो बना के उस पर क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे और मोनेटाइज हो भी जाएगा। तो आई एम ब्लेस्ड बाय मां सरस्वती, सो आई हैव इनफ थिंग्स, है ना। तो मुझे उसकी जरूरत है नहीं। ओनली आई टेक केयर टाइम, मेरे लिए टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू, लेट्स से 3.16 पर आप देखेंगे चारपेट्स ऑक्सिलरी लिखा, dz pdex इक्वल्स टू ये लिखा। अब उसके बाद यूजुअली अगर आपने इसको 1-2 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया, if you don't practice this question definitely you will not be able to solve in the exam hall. तो मैंने वहां पर आपको लिखा है नोटिसिंग, प्रैक्टिस नहीं होगा तो मजा आएगा करके। राइट? सो प्लीज डू सॉल्व ऑल दीज एग्जाम्पल्स, जहां जहां फंस सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, चारपेट्स मेथड, सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व कीजिए। अच्छा एक चीज और, यहां पर क्लेरट्स वाला जो फॉर्म है ना, क्लेरट वाले में मेरे को आपको बहुत ज्यादा बताना तो कुछ नहीं है। क्लेरट्स फॉर्म ऑलरेडी डेल्ट इन ओडी, ठीक है। y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो यहां पर क्या होगा, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, रिमूविंग द रिप्लेसिंग दिस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, a and b are arbitrary constant. So if a differential equation is of this form, अब आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा।
देखिए जरा. So this differential equation is given as in the Charpit's form. So its complete integral or complete solution can be directly written by just replacing p by arbitrary constant and q by another arbitrary constant. Clear? और क्यों कर रहे हैं चारपिट में ये, तो उसका आंसर आपको यहां पर दिख रहा होगा. If this is the equation like this, तो इनका एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा and why it is coming out as 0. Am I clear or not? बस यहाँ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अब आपके साथ. MDR में जैसे ODE जब कर रहे थे ना, इफ यू करेक्टली रिमेंबर, देयर ऑल्सो आई टोल्ड यू लेक्चर 3 आई गेस 1 2 3 यस 2 3 हाँ, नॉन लीनियर वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1 1 नॉट ऑफ डिग्री 1, देयर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इन क्लेरेट्स फॉर्म व्हाट आर दोज सब्स्टिट्यूशंस जिनसे क्लेरेट रिड्यूस होने के बाद उसका सॉल्यूशन लिखने में आसानी हो जाता है. अब ध्यान से सुनना एक बात, यूपीएससी दे देमसेल्फ आर आस्किंग क्वेश्चंस पीडीई फ्रॉम क्लेरेट इटसेल्फ and they are not giving you substitutions. तो वही चीज what I told you for multipliers, याद कीजिए, लीनियर के लिए मैंने मल्टीप्लायर्स चूज करना बताया था. ऐसे ही आप एक लिस्ट बना लीजिए यहां पर, ठीक है, केवल हेडिंग डालना सब्स्टिट्यूशंस, किसके लिए, क्लेरॉट्स के लिए. ये वो टेक्निक्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है. तो देखिए आपने अब एमडीआर के एग्जांपल्स देखेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. x इक्वल्स टू लॉग u, y इक्वल या log x इक्वल्स टू u, log y इक्वल्स टू v, x y इक्वल्स टू u, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसी एक लिस्ट होगी आपके पास, हार्डली 6 to 7. करना क्या है आपको इसमें, ये सब्स्टिट्यूशंस आपके दिमाग में चलने चाहिए. जब आप पेपर 2 करने जाएं उससे पहले भी लंच में एक बार मल्टीप्लायर्स वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट जरूर देख लें आप. प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, एग्जाम हॉल में आई गेस 21 में मुझे जितना याद है, वहां पर ऑल्सो दे आस्क्ड, वो क्वेश्चन इतना आसान था, उन्होंने सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा था, इतना आसान था, अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन का एक विजुअलाइजेशन दिमाग में सेट था तो जिसने उसको क्लेरेट में रिड्यूस कर लिया वो जस्ट 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर ले गया, और जिसने नहीं किया दे वेस्टेड देयर टाइम फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स इन द एग्जाम हॉल. आई टॉक्ड विद मेनी एस्पिरेंट्स देयर आउट ऑफ एग्जाम हॉल. दे सेड कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा था सब्स्टिट्यूट करना क्या है. तो दिस इज अ गाइड टू योर यूपीएससी जर्नी. सो दोस्त, पहला काम, सॉल्व ऑल एग्जांपल्स ऑफ द क्लेरेट्स फॉर्म, हाईलाइट द वर्ड ऑल, ठीक है. और मैंने जो पीडीएफ दिया है वहां पर आपको अंडरलाइन करके भी बोला हुआ है कि ये चीजें कीवर्ड्स हैं, ये यहां पर फंसेंगे आप. और ये जो सब्स्टिट्यूशन है क्लेरेट्स वाले, ओडीई में मैंने बताया था क्लेरेट में कैसे रिड्यूस होता है. इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि सर क्लेरेट में रिड्यूस करना बता दीजिए, तो ओडीई का लेक्चर 3 जरूर देखिए आप लोग. ये सब्स्टिट्यूशंस को आपको याद रखना है, ठीक है. तो नॉन लीनियर पीडीईज में दिस इज द मेजर पार्ट. एक और यहां पर सेगमेंट है, उसके लिए थोड़ा सा सांस लेते हैं, ठीक है. इसको हटा देते हैं पहले तो. चलिए, चलिए अभी यहां पर क्या होगा, अपने पास जो कॉशी प्रॉब्लम्स है ना,
अच्छा, मैं जो अभी बता रहा था ना कि फंक्शन पी क्यू जेड, इसमें मैंने मेरे क्लास नोट्स जो उस टाइम बनाता था एज एन एस्पिरेंट वो भी अटैच कर रखे हैं। जैकोबीज मेथड एक बार देख लीजिए, एक दो बार टच कर सकता है, ठीक है। तो एज चारपेट्स है ऐसे ही वहां पर भी ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो तो बहुत आसान होता है, ठीक है। जैकोबीज में, जैकोबीज इज वेरी इजी। Jacobi's method, let's say you have been given a partial differential equation f of x1 x2 x3 p1 p2 p3 equals to 0. x1 x2 x3 are independent variables, okay. p1 p2 p3 those are first order derivatives. तो इसके लिए जो auxiliary equation है those are very easy, just dp1 फिर dx1, ठीक है, फिर dp2 फिर dx2 फिर dp3 फिर dx3। dp1 अगर यहां पर है तो यहां पर डेवर f ओवर डेवर x1, अगर यहां डेवर x1 है तो यहां डेवर f ओवर डेवर p1, एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस, सिमिलरली हियर। तो चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस भी एक बार देख लीजिए, मतलब आपको पैनिक कर सकता है, ठीक है, छोड़िए नहीं उसको कंप्लीटली। ओ सॉरी, जैकोबीज, चारपेट बोल दिया, जैकोबीज। अच्छा हाँ, उसके बाद मैं जो आपके साथ बात कर रहा था, जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी, सॉरी, कंप्लीट इंटीग्रल, ओके, जैकोबीज मेथड तो बता ही दिया मैंने आपको। कॉशी प्रॉब्लम्स, कॉशी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको मेरा सजेशन क्या है। कॉशी प्रॉब्लम में कुछ नहीं होगा, आपको इनिशियल कंडीशन और गिवन होगा, ठीक है। लेट्स से कॉशी प्रॉब्लम में सपोज वी विश टू हैव द फाइनल इंटीग्रल सरफेस f of x1 x1 z। मैं इसके लिए कुछ प्लान कर रहा था आपके साथ, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टेप 2। अच्छा हाँ, मैं जो आपको बताने वाला था वो ये था, पेज नंबर 3.80 जो आपको पीडीएफ मैंने दिया है, ठीक है। प्लीज पेज नंबर 3.80, इस पर आप देखेंगे तो स्टेप 1, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज को कैसे यूज करना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को कैसे याद करना है, फॉर दैट आई एम गिविंग यू अ हिंट। जो चारपेट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, चारपेट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन का ही ये भाई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप देखेंगे dx अपॉन dt, बस जो ऊपर dx लिखा था ना उसको अपॉन में dt कर दीजिए और इक्वल टू जो लिखा था उसको वहां पर कर दीजिए। देखिएगा कॉशी प्रॉब्लम, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, इसके क्वेश्चन तो मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा, ठीक है, ट्यूटोरियल लूंगा इसके लिए, तो कॉशी प्रॉब्लम मैं बता दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जहां आपको रेफरेंस देने की जरूरत पड़ती है। सो यहां पर होगा क्या, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, एक इनिशियल कंडीशन दिया होगा आपको, राइट। तो इनिशियल कंडीशन से आप x0 y0 z0 सेट कर लेंगे अपना। यहां पर एक पैरामीटर t इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, एंड मार्किंग स्टार हियर, दिस इज वेरी लाइक लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यूपीएससी, ठीक है। दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, अनटिल अनलेस यू डोंट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, देखने से नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, फिर कहूंगा। तो इसमें ये करते क्या है, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी हमें यही होती है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप चारपिट केवल याद रखिए, बाकी सब ठीक है। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या था बच्चे, बोलेंगे dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, डी एक्स अपॉन माइनस का एफ पी, डी वाई अपॉन माइनस का एफ क्यू, डी जेड अपॉन माइनस का पी एफ पी एंड क्यू एफ क्यू, राइट। कोई दिक्कत?
अब जो इसका जो कॉसी वाले का वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा जाता है, अब मान लो इसको मैंने लिख दिया dx अपॉन dt, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दो इस वाले टर्म के, ठीक है, इसके साथ में प्लस यहां पर ले रहे हैं और इसके साथ में माइनस ले लेंगे। dy अपॉन dt किसके इक्वेट हो जाएगा, एफ क्यू के। dz अपॉन dt किसके इक्वेट हो जाएगा, पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, राइट। dp अपॉन dt किसके इक्वेट हो जाएगा, अब इसको माइनस साइन के साथ कर दो, प्लस माइनस आपको जिसके जिसके साथ लेना है, आप मतलब या तो इनके साथ ले लीजिए या इनके साथ में। dq अपॉन dt इज राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो आपको ऐसा बुखार नहीं छोड़ाना चाहिए कि ये भी मुझे याद करना है, नहीं, ये चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का फेस याद करके ही आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब इनके सहारे इनको सॉल्व जो किया जाता है, जो मैं पेज नंबर 3.80 बता रहा हूं, इसमें आपको कम से कम 15-20 मिनट लग सकते हैं, पहली बार में हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए एक क्वेश्चन समझने में, बट इन्वेस्ट दैट हाफ एन आवर, नो इश्यूज एट ऑल, क्लियर। तो ये जो कॉशी प्रॉब्लम है, इसके लिए 3.80 एग्जांपल को सॉल्व कीजिए। ट्यूटोरियल में आई विल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ओके। सो लेट्स स्टॉप द लेक्चर हियर। हियर आई हैव डिस्कस्ड फर्स्ट ऑर्डर ODE, फर्स्ट ऑर्डर PDEs, वेदर इट इज लीनियर नॉन लीनियर। हमने इंट्रोडक्शन भी किया, लेक्चर प्लान भी आपको दिया, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा हुआ। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, एक तो अपने पास ट्यूटोरियल रहेगा, ट्यूटोरियल में आई विल सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, कॉसी प्रॉब्लम्स फॉर लीनियर नॉन लीनियर ऑल्सो। इसके बाद में आगे भी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके सबको मिला के एक ट्यूटोरियल रख दूंगा। और वैसे भी मैंने आपको हिंट किया हुआ है कि जो PDF आपके पास है, यू कैन गो रेफर दैट PDF, you will find a teacher on your basis, okay। चलिए, so in the next part we will start higher order ODEs and I guess you people will be like really enjoying that, okay। चलो, should I remove this? अभी हम लोग अगले पार्ट में जब मिलेंगे तो करेंगे हायर ऑर्डर ODEs, okay। चलो।